Hi everyone, a very warm welcome to my channel. This is Mosrira here, and my channel is all about wellness, mental health, physical health, self-love, self-care, manifestation, and so many amazing things. If you like this kind of content, please subscribe to my channel. And without any delay, let's get into the video. So hi, you have to watch this video if you are in your early 20s, mid 20s. You have to watch this video because this video contains so many amazing points and things that you might need help with. And yeah, if you are ambitious and lazy, watch this. I know there are a lot of people who are ambitious but they are lazy. Okay, you are not alone. I am also there with you. You are not alone. Yeah, there is lots of ambitious people. They often feel lazy because they have lots in their minds, like they have to do this, they have to do that, they have lot of ideas how to do this, how to do that. They have the knowledge also, but they don't like like not like, but some people, some ambitious people have don't have the support they need, so they often get lazy. I can feel that. I can feel it, completely feel that, and you are not alone. It's okay to feel lazy, but it is necessary to take action. You don't have to worry about this, okay? You don't have to worry about this. You are in a right place, right time, right now, okay? You don't have to worry about this because it is the deadliest combination a person can have. Trust me, if you are ambitious and lazy, you are you can do something that might no one can do. Please don't give up. Whatever you have in your mind, whatever ideas you have in your mind, wrote it down in a notepad. मैं नहीं बोल रही हूँ कि ये तब भी काम आएगा. इट्स ओके अगर वो आइडियाज उस समय काम ना आए, पर फ्यूचर में काम जरूर आएगा. तो डोंट वेस्ट इट. wrote it down. Okay, grab your pen and paper and wrote it down. Okay, if you're ambitious and lazy, I know where it came from, but wrote it down. Okay, wake up and do small things. Okay, in the next 21 days, build a habit. Okay, build some habits. Okay, why building a habit is necessary, I'm going to tell you right now. Because एक habit build होने में कम से कम 21 to 28 days लगता है. That study says. Okay, and in practical reality I can say that it works. सुबह उठो, लिस्ट आप ऐसे बनाओ कि आप सुबह उठ रहे हो. ठीक है, आपको आपकी बेड सेट करनी है. ये फर्स्ट हैबिट बनाओ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि ये क्या ही काम करेगा मेरे लिए. ठीक है, हम हमेशा दूर की सोचते हैं ना कि हम ये करेंगे तो उसका क्या फायदा, उस विजन का क्या फायदा जो हमने सेट कर रखा है. ठीक है, पर ट्रस्ट में अगर हम दूर की विजन पहले देखेंगे ना, तो वहां से लेजीनेस का आना बहुत इजी होता है. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि एक बेड सेट करने से मेरा उससे क्या फायदा होगा. जो मैंने विजन बना के रखा है, बहुत कुछ फायदा होगा. क्यों, मैं बता रही हूँ. ह्यूमन बीइंग झट से छलांग नहीं मार सकता. देयर आर स्टेप्स दे नीड टू टेक. सीढ़ियाँ इसलिए होती है क्योंकि हमें ऊपर जाना होता है, वो सीढ़ियाँ लेके, ताकि हम गिर ना जाए. ठीक है, दिस इज अ सिंपल थिंग. ओके, मेकिंग अ बेड इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज हमें क्लियर माइंड चाहिए, जो कि हमें वो दे सकती है. अगर रूम सेट ना हो, ऑर्गेनाइज ना हो, हमारे माइंड भी ऑर्गेनाइज नहीं रहेगा. ठीक है, देन यू कैन डू इज टेक टाइम फॉर योर सेल्फ. लाइक अगर आप सुबह उठ के चाय पीते हो, तो चाय के साथ आप कुछ फन एक्टिविटीज करो या गाने सुनो. 15 मिनट के लिए आप एक सेशन रखो अपने लिए, जो कि मुझे बहुत हेल्प किया है. ठीक है, मैं चाय पीते पीते हमेशा लैपटॉप में मुझको रिचार्ज करती हूँ, गाने सुनते हो, क्योंकि मुझे पसंद है. ठीक है, तो वो क्या करता है ना, वो मेरी माइंड जो
ऑर्गेनाइज रहती है बेड सेट करने के बाद, तो ये क्या करते हैं, मेरे माइंड को पॉजिटिव रखने में हेल्प करता है। ठीक है, उसको ऐसा महसूस कराता है मेरे माइंड को कि हाँ अब मैं सेट हूँ। अगर मैं सुबह उठ के मूड ऑफ रहता है, मैं फिर से लेजी ही हो जाऊंगी। ठीक है ना, दिस इज अ सिंपल थिंग। तो अब one thing, make your bed, then recharge yourself, doing something that makes you give happiness, then अपने आप ही वो मोटिवेशन आ जाता है। अगर वो टेम्पररी फ्यूल मतलब मोटिवेशन आपके अंदर आ जाता है, तो अपने आप डिसिप्लिन आ जाती है। मोटिवेशन टेम्पररी है बट डिसिप्लिन इज परमानेंट। अगर छोटे छोटे हैबिट होता है तो डिसिप्लिन बढ़ता है। ठीक है, अगर वो कांस्टेंट रहता है तो आप एम्बिशियस तो हो, लेजीनेस नहीं रहेंगे, तब रहेंगे एम्बिशियस एंड एम्बिशियस पर्सन। Okay. The second thing you need to do is disappear and recharge yourself. That is a game changer, guys. ठीक है, disappear and recharge yourself. डिसअपियर यानी मैं आपको ये नहीं बोल रही हूँ कि सबसे कट कर लो, सबसे दूर हो जाओ, कहीं और चले जाओ सबसे। नहीं, ये नहीं होता है। ठीक है, डिसअपियर इन द सेंस आप सबके साथ रहो पर अपने आप में रहो। डिसअपियरेंस मतलब गायब नहीं हो जाना है। ठीक है, लोग बोलते हैं गायब हो जाओ, हाँ, बट तुम सोसाइटी में गायब होके नहीं रह सकते। ठीक है, इट्स अ सिंपल थिंग। ठीक है, तुम घर पे भी हो तो तुम्हारे घर में माँ बाप तो होंगे, तुम उनसे भी गायब नहीं हो सकते, फ्रेंड से भी गायब नहीं हो सकते। एक बात जो कि इम्पोर्टेंट है वो है अपने ऊपर काम करना, खुद को लेके चलना। ठीक है, एक लाइक तुम एक अकेले इंसान दिखते हो पर तुम एक अकेले इंसान इंसान नहीं हो। ठीक है, तुम्हारे अंदर दो थॉट्स होते हैं, राइट? एक सबको पता है। ठीक है, तो ऐसे मान के चलो कि तुम ही तुम्हारे दोस्त हो। ठीक है, अगर दोस्त नहीं हो तुम तुम्हारे पेरेंट हो, ऐसे मान के चलो। ठीक है, अगर कोई तुम्हें कुछ बोलता है तो तुम्हें खुद से पहले बात करनी है, मैं जाऊँ या ना जाऊँ, खुद से परमिशन लेनी है। ठीक है, तब दो थॉट्स एक्टिव हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, तो तुम्हें सुनना है खुद की। नहीं, मत जाओ वहां पे। ठीक है, वो तुम्हारी हायर पर्पस को सर्व नहीं करता, मत जाओ। अगर वो चीज तुम्हारी हायर पर्पस को सर्व करता है फिर जाओ। ऐसे करके चलो, खुद के पेरेंट्स बनना सीखो। ठीक है, खुद को लेके चलना सीखो। खुद को ये बोलो कि तुम ये करो ये करो, लाइक खुद के ऊपर टाइम इन्वेस्ट करो बेसिकली। दैट्स इट। दिस विल हेल्प यू इन अ सर्टेन वे। आपको एक अगर आप ये करना सीख जाते हो, डिसअपियर होना, देन आप खुद को रिचार्ज करना सीख जाते हो ना, ये आपको क्या करेगा, आपके अंदर एक पॉजिटिव चेंज लाएगा। जैसे कि लाइक आप आपको अकेले महसूस नहीं करोगे, आपको ऐसा लगेगा हाँ मैं हूँ मेरे साथ। ठीक है, मुझे पता है क्या करना है अभी। ठीक है, अगर कुछ चीज सही से नहीं चल रहा होता है तो तुम्हें खुद को उस सिचुएशन में ढालना आपको आ जाएगा, अगर आप ये मास्टर करना सीख जाओगे। दिस इज अ वेरी गुड थिंग। डिसअपियर एंड रिचार्ज। डिसअपियर हो जाओ, थोड़ा अपने ऊपर काम करो, खुद के ऊपर काम करो। ठीक है, खुद के ऊपर इन्वेस्ट करो टाइम एनर्जी जो तुम दूसरी चीजों पे करते थे। देन recharge. This process will recharge automatically. Third thing you need to do is question yourself. Okay, जो मैंने अभी बताए थे डिसअपियर हो जाओ, वो जो प्रोसेस था, डिसअपियरेंस होने का जो प्रोसेस था, उस समय में ये चीज बहुत हेल्प करती है। ठीक है, क्वेश्चनिंग योरसेल्फ इट्स a very mastermind thing. Like, what you can do is basically sit with yourself, question yourself something. You know what kind of question you need to ask yourself, right? अभी का जो तुम्हारा वर्जन है, अगर तुम ऐसे ही रहते हो, क्या 5 से 10 साल बाद तुम्हें वैसे ही रहना है? क्या तुम वैसे रह के खुश रह पाओगे? ऐसे क्वेश्चन करो। तुम्हें क्वेश्चनिंग करना नहीं आता है, ये बेसिकली सिंपल थिंग। तुम्हारे पास गूगल तो होगा, पिंटरेस्ट तो होगा। ठीक है,
वहां से एक प्रॉम्प्ट होता है, ठीक है, क्वेश्चन यू नीड टू आस्क योरसेल्फ, काइंड ऑफ प्रॉम्प्ट्स होता है, वहां से डाउनलोड करो सम क्वेश्चंस, सम डीप थॉट और डीप टॉक क्वेश्चंस डाउनलोड करो। अगर राइटिंग भी पसंद नहीं है, खुद को क्वेश्चन करो, खुद मिरर के सामने जा सकते हो, वो क्वेश्चन कर सकते हो और फिर खुद को आंसर दे सकते हो जो भी तुम्हारे मन में आता है, ठीक है। क्वेश्चन करो यार, क्वेश्चन करो। अगर तुम खुद को क्वेश्चन नहीं करोगे तो कैसे चलेगा? दुनिया तुमको क्वेश्चन करेगा, क्या किया है तुमने, क्या उखाड़ा है तुमने, ठीक है। तो खुद को क्वेश्चन करो दुनिया के क्वेश्चन करने से पहले। जो नेगेटिव थॉट्स होती है, लेजीनेस होती है या डिप्रेशन होती है, एंजाइटी होती है ना, ये लूप जैसी होती है, पता है, जो मैंने रियलाइज किया है। तो जब तक उन चीजों से एक लेसन ना सीख लेते हो ना, वो एक लूप की तरह काम करते हैं तुम्हारी लाइफ में। जब तक तुम लेजीनेस को ब्रेक नहीं करते हो, डिप्रेशन को ब्रेक नहीं करते हो खुद से, या एंजाइटी को ब्रेक नहीं करते हो खुद से, वो फिर से रिपीटेडली तुम्हारे पास आएगा ही आएगा जब तक तुम ये खुद ब्रेक नहीं करते हो। तुम देख लेना, मैं 100% ये तुमको कह सकती हूँ। अगर तुम अभी ये वीडियो देख रहे हो, ठीक है, बाद में फिर से आके 5-6 साल बाद ये वीडियो देखना, तब तुम्हें ये रियलाइज होगा कि शी इज राइट, दिस इज अ लूप, दिस इज ए लूप ऑफ डार्कनेस, ठीक है। जब तक तुम्हें तोड़ के खुद को बाहर नहीं निकालोगे, तब तक कुछ नहीं चेंज होगा, फिर से सब कुछ रिपीट होगा। तो तुम्हें वो लूप को तोड़ना है। थिंग इज बिलीव इन योरसेल्फ। ये सबसे हार्डेस्ट थिंग है, मुझे पता है, पर अगर तुम्हें मास्टर कर लेते हो ना, तुम्हें कोई भी रोकने वाला नहीं होगा, ठीक है। अरे यार, अगर तुम खुद को बिलीव नहीं करोगे, कौन, और कौन? जो सोसाइटी हमेशा तुम्हें उंगली दिखाने के लिए रेडी रहता है, वो नहीं यार, नहीं, ऐसा नहीं होता। खुद को बिलीव करना होगा, ठीक है। जो चीज नहीं दिखाई दे रही है उसको भी बिलीव करना होगा, जो चीज तुम्हारे सामने है, तुम्हारी अभी की रियलिटी है, उसको भी रियलाइज करना होगा और तोड़ना होगा और खुद पे विश्वास रखना होगा। ये नहीं किया तो बाकी सब चीजें फेल। The last thing I want to say is you need to dare for yourself. तुम्हें ही तुमको उठाना है, तुम्हें ही तुमको उठा के वहां ले जाना है जहां तुम जाना चाहते हो, ठीक है। कोई नहीं ले जाएगा। इस जर्नी में बहुत लोग आएंगे, बहुत लोग जाएंगे, पर जर्नी तुम्हारी है। तो तुम्हें खुद के साथ इस जर्नी पे चलना है आखिर तक। अगर रुकना है, थोड़ा सा ब्रेक ले लो, पर रुको मत, ठीक है। ब्रेक लो पर रुको मत। अगर अभी नहीं किया कभी नहीं कर पाओगे। अगर अभी रुक गए ना, बाद में रिग्रेट ही करोगे। जब तुम लेजी थे, डिप्रेस्ड थे, वही थॉट तुम्हारे अंदर चल रहा था कि अरे यार, अगर मैं आज लेजी ना हो के बेड पे नहीं रहा होता तो मैं कुछ कर रहा होता अभी, ठीक है। मुझे रिग्रेट नहीं करना है, तो रिग्रेट मत करो यार। तुम्हें कुछ भी हेल्प चाहिए, अगर तुम्हें एक फ्रेंड भी चाहिए, अगर तुम्हारे पास कोई भी ना हो, बस एक फ्रेंड चाहिए जिससे तुम शेयर करना चाहते हो कुछ भी, तो मैं मेरी इंस्टाग्राम नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। इफ यू वांट एनी हेल्प, एनी सॉर्ट ऑफ हेल्प अबाउट वेलनेस, मेंटल हेल्थ, इफ यू वांट टू शेयर समथिंग, इफ यू डोंट हैव एनीवन राइट नाउ बाय योर साइड, you can message me. I am just one step away. Just message me. Yeah, all I can say is you can do it. Yeah.